Hello student, today I will discuss about the fuel handling and burning system. This is the part of unit 1, thermal engineering and gas dynamics subject. First of all, discuss about the cold handling storage of coal. Because of the, we know that about in a thermal power plant, solid fuel just like a coal will be used. Liquid and the gaseous fuel बहुत कम क्वांटिटी में यूज किया जाता है. So here we will discuss about the only solid fuel which will be used in the thermal power plant. So what is the main purpose of the storage of coal? That is the store the coal for a period of 30 to 90 days. यदि हम fuel को कोल को स्टोर 30 to 90 डेज रखते हैं तो शट डाउन होने की स्थिति हमारी प्लांट की नहीं आती है. To permit the choice of the date of the purchase, allowing the management to take advantage of seasonal market condition. This दूसरा ये है कि कोल को स्टोरेज करने से हमारा एडवांटेज है कि हम जो मार्केट कंडीशन का एडवांटेज है कि यदि आपका कभी रेनी सीजन चल रहा है तो उस केस में हमें कोल परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम उस मार्केट का फायदा उठा सकते हैं इन प्राइस ऑफ कोल. What are the main requirements of the good coal handling plants at the sites? क्या requirements हो सकती है coal handling plants के लिए sites पे? First of all, requirement that is the minimum maintenance. Second is it should be of simple. It should be of reliable. It should be of supply continuously as per the demand of power plant. It should be of minimum wear in running the equipment. तो ये आपके 5 रिक्वायरमेंट हैं. तो जिसमें से जो पहला है कि बहुत कम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है कोल के लिए और सिंपल रहता है डिजाइन में, रिलायबल रहता है, इसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी रहती है और सप्लाई कंटिन्यूसली कर सकते हैं यदि डिमांड बहुत ज़्यादा पावर प्लांट में हो रही है और वीआर की जो कंडीशन रहती है इक्विपमेंट्स की बहुत कम रहती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेड स्टोरेज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेड स्टोरेज और आउटडोर स्टोरेज? तो डेड स्टोरेज का मतलब क्या है कोल का कि डेड स्टोरेज जैसा कि कोल यदि रिसीव हो जाता है और उसको पावर प्लांट में हम प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं और वो काफी स्टोर होता चला जाता है तो उसे हम डेड स्टोरेज का नाम देते हैं या उसको दूसरी लैंग्वेज में आउटडोर स्टोरेज का भी नाम देते हैं. तो दिस इज द कंडीशन वेयर द फ्यूल और कोल इज नॉट यूज इन अ प्लांट फॉर a longer time. That is called a condition of dead storage or outdoor storage. What is the meaning of cold handling storage of coal? किस तरीके से कोल को हैंडल कर सकते हैं एक प्लांट के अंदर? दैट इज द स्टॉकिंग द कोल इन हेल्प और piles. Generally, concrete flooded area is used for the prevent the flow of air, and the coal is stored in the form of the heaps or piles up to a height of 10 to 12 meter directly on concrete ground. The coal should be compacted in layer of 15 to 13 centimeter of thickness. What is the another features of the cold handling storage of the coal? That is the effectively prevents the air circulation in the interior of the pile. Air को prevent करने का काम करता है. It is the second method for removing the heat of the oxidation. That is the air which is allowed to move through the layers evenly so that the air may be remove the heat of reaction and avoid the burning. First method जो है air circulation के द्वारा cold handling को किया जा सकता है कि उसको प्रिवेंट किया जाए एयर सर्कुलेशन को. सेकंड की हीट जो उसके अंदर कोल के अंदर रहती है उसको रिमूव करने का जो तरीका रहता है उससे हम कोल्ड हैंडलिंग इजीली तरीके से कर सकते हैं. Another method is the sealing of stored pile is desirable in order to avoid the oxidation of the coal after the packing an airtight layer of coal. That is the another features of the cold handling system. The same purpose is the cold handling storage of the underwater storage. क्योंकि कंडीशंस रहती है कि रेनी सीजन में कोल जो है काफ़ी गीला हो जाता है तो उसको रोकने के लिए हम लोग इस तरह की अरेंजमेंट करते हैं ताकि जो कोयला है वो वाटर से अफेक्टेड ना हो और अंडर वाटर की कंडीशंस में उसको हम यूज़ कर सकें विदाउट विदाउट मॉइस्चर के.
Live storage or active storage, that is the where the coal is continuously available in a terms of the storage pile, and the coal is usually stored in a vertical cylinder bunker or coal bins. That is another method. Live coal storage bunkers are normally constructed इस तरह के जहाँ पे कि कोल इजिली अवेलेबल है, जहाँ पे मॉइस्चर नहीं कोल के अंदर, उसको हम यूज कर सकते हैं। और जो बंकर बनाए जाते हैं वो स्टील या रेनफोर्स कंक्रीट के बनाए जाते हैं ताकि कोल को हम इजिली तरीके से स्टोर कर सकें। What is the method of the coal handling? This is the main methods और मेन फ्लो डायग्राम ऑफ द कोल हैंडलिंग। तो कोल हैंडलिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो कॉमन अरेंजमेंट है वो यहाँ पे दिखाया गया है कोल हैंडलिंग के लिए कि कोल की डिलीवरी हो रही है, उसकी अनलोडिंग हो रही है, कोल को प्रिपेयर किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, स्टोरेज किया जा रहा है। स्टोरेज दो तरीके से करेंगे, आउटडोर और इंडोर। आउटडोर में जहाँ की कोयला किसी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता, इंडोर में कि जहाँ पे कि कोयले को फाइन तरीके से यूज कर सकते हैं, इम्प्लांट हैंडलिंग कर सकते हैं, उसका वेइंग कर सकते हैं कितना है उसका वेइंग, और फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ कोल टू फर्नेस। तो डायरेक्टली यदि हमें फर्नेस पे कोल को भेजना तो उसके लिए हमें जरूरी नहीं कि हम पहले कोल जैसे ही आता है और उसको हम डायरेक्टली प्लांट में भेज दें। सबसे पहले हमारे पास ये सारे मेथड रहते हैं। तो कोल डिलीवरी यदि हो रहा है तो उसको अनलोडिंग करने के बाद उसकी प्रिपरेशन करते हैं, देन उसका ट्रांसफरिंग करते हैं, फिर स्टोरेज करते हैं, उसका देखते हैं कि कितना काम का है, और फिर इम्प्लांट हैंडलिंग करते हैं। तो ये सारी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कोल हैंडलिंग सिस्टम्स में। what are the types of स्टॉकर दे आर वर्किंग? स्टॉकर वो जगह होती है या प्लांट के अंदर वो प्लेस होता है जहाँ की हम कोल को स्टोरेज करते हैं। तो कोल को स्टोरेज करने के लिए हमारे पास स्टॉकर्स होने जरूरी है, और स्टॉकर जो है यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, ओवर फीडिंग और अंडर फीडिंग। ओवर फीडिंग स्टॉकर्स वो स्टॉकर्स होते हैं जहाँ पे कि फ्यूल को प्लांट के अंदर ऊपर से फेंका जाता है, या बोलना चाहिए फोर्स के फुली यहाँ से उसको निकाला जाता है। और अंडर फीडिंग जहाँ पे कि कोल को नीचे के रास्ते से उसको फीडिंग कराई जाती है। तो यहाँ पे अपने पास दो तरह के मेनली यूज होते हैं स्टॉकर्स, ओवर फीडिंग एंड अंडर फीडिंग। अ ग्रेट इज यूज एट ए फर्नेस बॉटम टू होल्ड ए बेड ऑफ फ्यूल। जो ग्रेट होती है फर्नेस के अंदर वो फ्यूल के बेड को होल्ड करने का काम करती है, ताकि हम दो तरीके से कोल की फीडिंग करा सके। Therefore, automatic stopper may be classified as the overhead and the underfeed stopper। ये आप जो देख रहे हैं ओवरफीड स्टॉपर से, यहाँ पे 5 जोन रहते हैं, फ्लैम, ग्रीन कोल, इनकेंडेंस, लो कोक, एस जोन, ग्रेड जोन। तो जो प्राइमरी एयर है वो एटमॉस्फेरिक एयर रहती है, सप्लाई की जाती है यहाँ से, और जो सेकेंडरी एयर है वो अपर साइड से जो कंबशन चैम्बर रहता है वहाँ से सप्लाई की जाती है। और सेकेंडरी एयर में CO2, O2, N2, H2O ये सारी चीज़ें शामिल रहती हैं। और दीज आर द फ्यूल, ग्रीन कोल जो कि सप्लाई किया जाता है रिफाइंड फॉर्म में आफ्टर द रिमूविंग ऑफ द एस, आफ्टर द रिमूविंग ऑफ द मॉइस्चर। दैट इज द रिसीविंग द कोल। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ओवरफीड स्टॉकर के अंदर में हम पढ़ रहे हैं। इट रिसीव द कोल ऑन इट्स टॉप सरफेस एंड इज characterized by the following 5 zones from top to bottom, जो हमने आपको दिखाए थे टॉप टू बॉटम, ये 5 जोन आपके दिख रहे हैं। तो ए लेयर ऑफ फ्रेश और ग्रीन कोल फ्रेश कोल जोन कहलाता है। ए लेयर ऑफ कोल लूजिंग मॉइस्चर ड्राइंग जोन कहलाता है। तो आप देख रहे हैं सीक्वेंस में ये कोल की जो है जोनिंग सेक्शन बढ़ती चली आ रही है। ए कुकिंग लेयर ऑफ कोल लूजिंग इट्स वोलेटाइल कंटेनमेंट डिस्टिलेशन जोन कहलाता है इसे। A layer of incandescent coke where the fixed carbon is consumed, that is the combustion zone. A layer of ash progressively getting cooler as zone। ये इस तरह के जोन है जहाँ पे कि अलग अलग कोल की जो फॉर्मेशंस हैं, जो उसका फॉर्मेट है वो दिखाई देता है। अनदर कि उसमें एयर किस तरीके से सप्लाई की जा रही है। तो एफडी फैन जो फोर्स ब्रॉड फैन रहता है वो बॉटम साइड पे लगा रहता है, जो कि प्राइमरली एयर को कोल के साथ में फीडिंग किया जाता है, और ताकि जो कोल के अंदर मॉइस्चर उसको एब्जॉर्ब कर सके। सेकेंडरी एयर जो है टॉप साइड से सप्लाई की जाती है, जो कि आप देख रहे हैं टर्बुलेंस प्रोवाइड करने के लिए ताकि कंप्लीट कंबशन हो सके। टाइप्स ऑफ द ओवरफीड स्टॉपर जो होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं। ट्रैवलिंग ग्रेड स्टॉपर होता है, स्प्रेडर स्टॉपर होता है। प्रिंसिपल ऑफ अंडरफीड स्टॉकर।
अंडर फीड स्टॉकर्स के केस में जो फ्यूल रहता है वो इनसाइड ऑफ जो फर्नेस रहता है उसके अंदर से आता है, जबकि ओवरफीड स्टॉकर्स में अपन ने देखा कि जो फ्यूल रहता है कोल के फॉर्म में, सॉलिड कोल के फॉर्म में, वो अपर साइड एबव साइड ऑफ में फर्नेस के आता है। यहाँ पे इन साइड ऑफ जो फ्यूल है वो सप्लाई किया जा रहा है। जोन सारे वही रहते हैं जैसे कि वहाँ पे थे जोन, यहाँ पे भी 5 जोन रहते हैं, फ्लेम, एस, इनकैंडेंसमेंट कोड, ग्रीन कोल, और आपका जो एयर सप्लाई हो रही है। तो मेन फंडामेंटल की फ्यूल कहाँ पे सप्लाई हो रहा है, किस तरीके से सप्लाई हो रहा है। तो जब फर्नेस के बिलो से जो फ्यूल सप्लाई होता है तो उसे हम अंडर फीड शॉकर के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्यूल एंड एयर मूव इन द सेम डायरेक्शन। जो फ्यूल और एयर रहती है ये सेम डायरेक्शन में मूव करती है, जबकि ओवरफीड शॉकर के केस में ऐसा नहीं हो रहा था। वहाँ पे फ्यूल और एयर जो है अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये फ्यूल और जो एयर है वो आपके सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। उसके बाद एयर मिक्स अप विद द formed volatile matter that is passed in ignite zone, inter region of the encasement port। इस तरीके के रीजन जो है आते रहते हैं जिसमें कि आपके जो कोल की डिफरेंट फेजेस है वो नजर में आती है। Another method of the coal handling system, that is the pulverized fuel handling system। जो कोल है उसको यदि चूर्ण के फॉर्म में यदि स्टोर किया जाए, पल्वराइज मीन्स होता है कि फ्यूल को क्रश कर देना, उसको क्रश करके आप एक पाउडर फॉर्म में लेके आ जाएंगे तो उसे पल्वराइज फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम कहते हैं। दिस इज द फेमस फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम जिसमें कि फ्यूल को काफी अच्छी तरीके से स्टोर करके रखा जा सकता है। जनरली क्या होता है, बारिश के सीजन में जो कोल होता है वो काफी ज्यादा अपने अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। पल्वराइज फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम इस मेथड को ओवरकम करने का काम करता है, जिसमें कि हम मॉइस्चर को ना के बराबर शामिल कर पाते हैं, या बस ये मॉइस्चर जो है डायरेक्टली इसमें कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। तो इन pulverized fuel firing coal is reduced to a fine powder in a grinding mill or pulverizers and then projected into the combustion chamber by means of the current of hot air। The amount of air which is used to dry the coal and convey the powder fuel to the furnace is known as the primary air। So these are the method which are in case of coal is will used in the plant in the powder form। Amount of air which is blown in separately to complete the combustion is known as the secondary air। This is another method कि secondary air की requirement हमें क्यों हो रही है। तो कोल पल्वराइजेशन के लिए स्टेजेस रहती हैं। पहली स्टेज है रॉ एंड लंप कोल इज क्रश्ड टू ए पार्टिकल साइज नॉट मोर देन 15 to 25 mm इन द क्रशर। दूसरी स्टेज की बात करें तो क्रश कोल जो है डिलीवर किया जाता है रॉ bunkers and from air it is transferred to the grinding mills that grind a feed into the fine particles of 200 to 300 size। During grinding, hot air is blown down to the fuel to dry it to impart good fluidity of the coal dust। तो दो स्टेजेस में कोल पल्वराइजेशन की प्रोसेस को पूरी किया जाता है। पहले केस में जो 15 से 25 mm के साइज के कोल रहते हैं उनको क्रश किया जाता है। दूसरे स्टेज में जो पार्टिकल 200 से 300 mm साइज के रहते हैं उनको क्रश किया जाता है। तो पहले बड़े साइज के कोल को क्रश करके उसको पाउडर फॉर्म में लाते हैं, फिर उसके बाद जो छोटे फॉर्म की वजह से जिसका कि साइज बहुत कम होता है उसको हम फिर क्रश करके छोटे पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं। तो ग्राइंडिंग के दौरान जो हॉट एयर रहती है दैट इज सप्लाई फ्यूल टू द ड्राई एयर इट टू द इम्पार्ट गुड फ्लूइडिटी ऑफ कोल डस्ट। तो हमें फ्लूइडिटी बनाए रखने के लिए इस तरीके की प्रोसेस अपनानी पड़ती है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द पल्वराइज्ड कोल फायरिंग सिस्टम। क्या एडवांटेजेस होते हैं पल्वराइज्ड कोल फायरिंग सिस्टम के। उसमें सबसे पहला है लार्जर सरफेस एरिया हमें मिलता है, लेस एक्सेस एयर की रिक्वायरमेंट रहती है कंप्लीट कंबशन की कंपेयरिंग टू सॉलिड फ्यूल। एनी टाइप ऑफ कोल कैन बी यूज्ड, बेटर रिस्पांस टू वेरिएशन इन लोड, large amount of heat release make it suitable, clinkering and slagging problem और low। क्लिंकलिंग करने की प्रॉब्लम जो रहती है, स्लैगिंग करने की प्रॉब्लम बहुत लो रहती है। कैरी ओवर ऑफ द अनबर्न फ्यूल टू एस इज नील, लो एस हैंडलिंग सिस्टम रहता है।
ऑपरेट सक्सेसफुली, लेस फर्नेस वॉल्यूम रिक्वायर्ड रहता है, स्मोकलेस ऑपरेशन रहता है, यूज ऑफ हाईली प्रीहीटेड एयर रहती है, नो मूविंग पार्ट रहता है। तो ये सारे एडवांटेज रहते हैं पल्वराइज फुल फायरिंग सिस्टम्स के। लेकिन एडवांटेज साथ साथ ये भी है कि यदि कोई भी चीज़ यूज़ कर रहा है तो उसके डिसएडवांटेज रहेंगे। तो इसकी कैपिटल कॉस्ट जो रहती है बहुत ज़्यादा रहती है, ऑपरेशन कॉस्ट भी ज़्यादा है, फ्लाई एश को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल काम रहता है। जो कोल बर्न हो रहा है इसमें एक्सप्लोजन होने के चांसेस बहुत बन रहते हैं क्योंकि पाउडर फॉर्म में रहता है। स्पेशल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है जो कि पाउडर फॉर्म में रहता है फॉर द स्टार्टिंग पर्पज। मेंटेनेंस ऑफ फर्नेस इज कॉस्टली, फर्नेस का जो मेंटेनेंस काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। स्किल ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट बनी रहती है हरदम। हाई एयर पोल्यूशन रहता है ड्यू टू द इमिशंस ऑफ द फाइन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड लिक्विड, क्योंकि पाउडर फॉर्म में रहेगा तो उसके जो फाइन पार्टिकल रहेंगे कोल के उसमें ज़्यादा पॉल्यूशन शामिल रहेगा, तो जिसके कारण से कि उसको हमें दूर करने के लिए अलग से अरेंजमेंट करना पड़ता है। अब किस तरीके से इसको हैंडल किया जाता है पल्वराइज फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम को, जैसे कि वहाँ पे कोल सॉलिड फ्यूल कोल को हम दो तरीके से हैंडल कर रहे थे। उसमें पहला था आपका ओवरफीड और अंडरफीड। इसी तरीके से जो पल्वराइज फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम है इसमें पाउडर फॉर्म में जो फ्यूल को हैंडल किया जा रहा है वो दो सिस्टम से कहता है, पहला यूनिट सिस्टम, दूसरा सेंट्रल और विंग सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट सिस्टम को हम देख लें। यूनिट सिस्टम इट इज़ अ सिंपल सिस्टम जहाँ की आप देख रहे हैं जो रॉ कोल है बंकर से सप्लाई होके आ रहा है पाउडर फॉर्म में, और एयर यहाँ से मिक्सअप की जा रही है फीडर से होता हुआ फिर पल्वराइज कोल मिल में आ रहा है सेपरेटर के थ्रू, आईडी फैन के थ्रू, यहाँ पे आपको जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट फर्नेस में थ्रू द बर्नर सप्लाई किए जा रहे हैं। सेकेंडरी एयर की सप्लाई जहाँ पे फर्नेस रहती है वहाँ पे की जाती है, और प्राइमरी एयर की सप्लाई जहाँ पे फ्यूल स्टार्टिंग में आपका सप्लाई होता है वहाँ पे की जाती है। तो दिस इज द सिंपल अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट सिस्टम। दिस इज द फॉर्मेट कि आपका क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ पे बर्नर लगा हुआ है रॉ कोल बर्नर, और यहाँ पे आपका मिल है पल्वराइज मिल है, यहाँ पे एक फैन लगा दिया गया है, यहाँ पे फर्नेस चैम्बर है, यहाँ पे की फ्यूल की बर्निंग की जा रही है। सेकेंडरी एयर सप्लाई करने के लिए यहाँ पे फैन लगा दिए गए हैं, प्राइमरी एयर सप्लाई करने के लिए यहाँ से सिस्टम दिया गया है, और सेपरेटर यूज किया जा रहा है पल्वराइज मिल में ताकि हम कुछ भी यदि इम्प्योरिटीज या मॉइस्चर आता है तो उसको रिमूव कर सकें। तो सेपरेटर से फ्यूल जब भी सप्लाई होगा तो पाउडर के फॉर्म में और अच्छी क्वालिटी का सप्लाई होगा, और यहाँ से आफ्टर की कुछ भी इम्प्योरिटीज या मॉइस्चर पार्टिकल आ रहे हैं तो उसको निकाल सकते हैं। तो यूनिट सिस्टम द क्रश होल फ्रॉम द कोल बंकर इज फीड, जैसा कि आप दिखा रहे थे यहाँ पे से सप्लाई किया जाता है through the feeder at a variable rate governed by the combustion requirement of boiler furnace and the steam generation rate, जो कि हमने बात की कि यहाँ पे स्टीम जनरेशन रेट को प्रोपोगेट करने के लिए हम ऐसा काम करते हैं कि सेपरेटर भी लगा दिए ताकि जो फ्यूल है प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई हो सके। उसके बाद hot air or fuel gases are passes through the feeder to dry the coal before feeding to the pulverizer। तो हॉट एयर या फ्लू गैसेस जो है पास की जाती है फीडर पे ताकि हम कोल को फिर से वापस से पाउडर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं बिफोर फीडिंग टू द पल्वराइजर। यूनिट सिस्टम which further is carried from the mill with the help of the introduced dot fan via a separator and blow into the furnace along with the hot air। तो hot air जो supply की जा रही है that is called the secondary air। In the separator the big particles of the coal are separated from the fine dust and these again fall down into the mill। तो जो भी मॉइस्चर पार्टिकल है या आप बोलो चाहिए वहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज वगैरह यदि कोल में आ रही है तो उसको सेपरेट कर दिया जाता है और फिर से उसको नीचे मिल की तरफ गिरा दिया जाता है ताकि उसको हम प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट कर सकें। द सेकेंडरी एयर सप्लाई टू द बर्नर बिफोर एंटरिंग द फ्यूल इनटू द कंबशन चेंबर। तो कंबशन चेंबर में सप्लाई करने से पहले जो पाउडर फॉर्म में आपका कोल आ रहा है उसको हम सप्लाई करते हैं सेकेंडरी एयर के साथ में ताकि प्रॉपर तरीके से कंबशन हो सके कंबशन चैम्बर में। यूनिट सिस्टम की कुछ एडवांटेज है, सिंपल लेआउट रहता है, इसकी जो कॉस्ट है बहुत कम रहती है, अलाउज डायरेक्ट कंबशन कंट्रोल ये कर सकते हैं फ्रॉम द पल्वराइजर, एंड लोअर मेंटेनेंस चार्जेस रहते हैं, लेस स्पेस रिक्वायरमेंट रहती है, नो ड्राइंग यूनिट इज रिक्वायर्ड।
अब एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं यूनिट सिस्टम के, क्योंकि पल्वराइजिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है पाउडर फॉर्म में और सिंपल तरीके से यूज किया जा रहा है, तो इस केस में हमारे जो डिसएडवांटेज हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम में नहीं रहती है, वेरिएबल लोड पे काम नहीं कर पाता है, और बोलना चाहिए जो बॉयलर यूनिट है कभी भी शट डाउन हो सकती है, क्योंकि हम उसको रॉ मटेरियल की केस से लेके आ रहे हैं। ग्रेटर वियर ऑफ रहता है ब्लेड्स के केस में हैंडल करने के लिए। एग्जॉस्ट फैन की जरूरत पड़ती रहती है, और एग्जॉस्ट फैन अक्सर जो रहता है वो वियर के कांटेक्ट में रहता है, जिसके कारण से कि पोल को हैंडलिंग करने के लिए प्रॉब्लम हरदम बनी रहती है। Another system is called a central system, in which fuel is supplied in a central manner, not from the directly in the, this is the arrangement जहाँ की fuel यहाँ पे आ रहा है, hot air is primary air is supplying and due to hot fan is applying here। तो यहाँ पे जो मिल का नाम रहता है वो सेंट्रल पल्वराइजिंग रहती है, साइक्लोन सेपरेटर रहता है, इसको कन्वेयर लगा रहता है, सेंट्रल बिन है, पल्वराइज फ्यूल फीडर है जो कि पोस्ट डॉट फैन के रूप में रहती है, सेकेंडरी एयर जो है सप्लाई की जाती है फर्नेस में। तो यहाँ पे फर्नेस दो दिख रही है आपको, तो सेकेंडरी एयर जो है फैन के थ्रू ही सप्लाई की जाती है प्रीहीटेड के फॉर्म में, ताकि कंबशन जो है प्रॉपर तरीके से कर सके। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ द सिंपल पल्वराइजिंग मिल की जगह सेंट्रल पल्वराइजिंग मिल रहती है, ताकि जो सेपरेटर से निकल के आ रहा है इम्प्योरिटी वाला कोल, या बोलना चाहिए एलिमिनेटेड कोल, उसको भी हम यहाँ पे प्रेस कर सके, जो यहाँ से रॉ वाला आ रहा है उसको भी हम कर सके। उसके बाद हम यहाँ से सप्लाई करना चालू करते हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से वो अच्छी क्वांटिटी का जो है जो कोयला है पाउडर फॉर्म में वो सप्लाई हो सके। और ये सेंट्रल बिन के माध्यम से होता है। इट इज द मीडियम ऑफ सेंट्रल बिन वेयर द forced rod fan is installed, and after the adding of the forced rod fan and with the help of the central bin which is supplied through the furnace system, जो कि शो किया गया डायग्राम में। तो central system, in this system the coal is pulverized on a central basis. The pulverized coal is stored in a central bin where from it is distributed through the pipelines between the boilers. The coal from the raw coal bunkers is fed to the dryer. The coal drying is achieved by using a hot gas, preheated or the billet steam. Feeder is used to the feed dried coal to the pulverizer. इस तरह का सिस्टम जो है बहुत इफेक्टिव रहता है, बट ये काफी कॉस्टली पड़ता है। यदि इसके डिसएडवांटेज के रूप में देखेंगे तो काफी ज्यादा कॉस्टली है। The pulverized coal is carried from the pulverizer mill with the help of the air. It is separated in the cyclone separator. The separated pulverized coal is transferred to the central bin with the help of the conveyor. जैसा कि वर्किंग बता रहे थे यहाँ पे आपको कि सेंट्रल बिन के इसमें कंडीशंस पे कैसे आता है, यहाँ से निकलने के बाद और यहाँ से निकलने के बाद एक सेंट्रल पल्वराइज बिन में आता है, उसके बाद आईडी फैन की तरफ यूज रॉड फैन की तरफ से इसको हम भेजते हैं वापस से, और सेंट्रल बिन पे आने के बाद उस रॉड की फैन की वजह से फिर नीचे आता है। And after that the mixture of the pulverized coal and the air is then supplied to the burners। इस तरीके से हम सप्लाई करते हैं। बर्निंग सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से फ्यूल को बर्निंग किया जाता है, उसके लिए फ्यूल इज बर्न इन ए कन्फाइंड स्पेस नोन एज अ फर्नेस। फ्यूल को बर्निंग करने के लिए एक फर्नेस जगह होती है जहाँ पे कि फ्यूल को बर्निंग किया जाता है। द फर्नेस प्रोवाइड सपोर्ट्स एंड द enclosure for the burning equipments। Solid fuels such as a coal, coke, wood are burned by means of a stopper, whereas the burner are used to burn pulverized coal and the liquid fuels। सॉलिड फ्यूल को बर्न करने के लिए हमारे पास अलग तरीके की मीडियम जैसे ये स्टॉपर रहता है, और पाउडर फॉर्म में भी जो फ्यूल रहता है उसके लिए हम लोग पल्वराइज कोल या लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड फ्यूल रिक्वायर्ड ए ग्रेट इन द फर्नेस टू द होल्ड द बेड ऑफ द फ्यूल। सॉलिड फ्यूल जो है ग्रेट फर्नेस के लिए होल्ड करने के लिए रिक्वायरमेंट रहता है। What is the selection process of the fuel firing method? That is the characterization of the level coal, capacity of the plant, efficiency and the reliability of the combustion equipment, the power plant load factor, and the nature of load fluctuation. So these are the 5 requirements for the fuel firing method। कि अवेलेबिलिटी कोल की क्या है, प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, इफिशिएंसी और रिलायबिलिटी कंबशन इक्विपमेंट की क्या है, पावर प्लांट का लोड फैक्टर क्या है, और नेचर ऑफ लोड फ्लक्चुएशंस क्या है। इस हिसाब से हम
इसका सिलेक्शन करते हैं फ्यूल फायरिंग सिस्टम्स का। The last slide is that is the what is the solid fuel firing हैंड फायरिंग सिस्टम जो इस्तेमाल किया जाता है, स्टॉपर फायरिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है सॉलिड फ्यूल को जलाने के लिए। इट इज द सिंपल एंड द सुटेबल फॉर द स्मॉल पावर प्लांट। जैसा कि देखते हैं कि जो सॉलिड फ्यूल है उसकी बर्निंग करने के लिए बहुत बड़े प्लांट में नहीं करते हैं, छोटे पावर प्लांट में की जाती है। इट इज डिफिकल्ट टू अचीव द यूनिफॉर्म कंबशन, डिफिकल्ट रहता है यूनिफॉर्म कंबशन के लिए। स्टॉकर जो फायरिंग रहती है, इट इज द पावर ऑपरेटेड फ्यूल फीडिंग मैकेनिज्म। फ्यूल को फोर्सफुली तरीके से भेजा जाता है सिस्टम के अंदर। With the stalker firing, it allowed the burn large quantity of fuel with easy in controlling the combustion with a higher efficiency and less labor of the handling gas and are self cleaning। इस तरीके से सॉलिड फ्यूल की सप्लाई की जाती है, लेस लेबर हैंडलिंग गैस रहती है और सेल्फ क्लीनिंग रहती है। तो आज हमने फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम देखा, साथ ही साथ में छोटा सा पार्ट बर्निंग सिस्टम का देखा सॉलिड फ्यूल का। नेक्स्ट क्लास में हम एस हैंडलिंग सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे, ड्रॉट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ड्रॉट क्या होता है, किस तरीके से हम ड्रॉट को इस्तेमाल करते हैं पावर प्लांट में, कितने तरह के ड्रॉट होते हैं, और इक्विवेलेंट इवेपोरेशन बॉयलर एफिशिएंसीज के न्यूमेरिकल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो ये कंटेंट था, कुछ भी यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।